यस बेटा, जर्नल एंट्रीज जो हम चेक कर रहे थे कल। नाउ सम नंबर 12 विल स्टार्ट। He says Rohit, Kunal and Sarthak are partners in a firm. They decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to realization account. जब ऐसे एंट्रीज आएंगी ना, हम कल भी यही बात कर रहे थे, जब ऐसे एंट्रीज आएंगी तो ये जूम करना है कि एंट्रीज पहले ही ट्रांसफर हो चुकी हैं रियलाइजेशन में। हमने वो एसेट सेल की, लाइबिलिटीज पेड की, टेकन ओवर की एंट्री करनी है। नो नीड टू पास द एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। नो नीड टू पास दैट। फाइन। यस तनवीर, हैंड रेज किया हुआ है आपने। सर लोअर नहीं किया था। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट इज Kunal agreed to pay off his wife's loan ₹6,000. Kunal agreed to pay his wife's loan. His wife is outside the party. Liability taken over by a partner. Entry will be realization account debit to partner's capital account. This to Kunal's capital. Second is total creditors of the firm were 40,000. Creditors worth 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement. Remaining creditors allowed a discount of 10%. हम ये कल भी बात कर रहे थे that whenever an asset is taken over by a liability, उसकी एंट्री पास नहीं होती। He says creditors थे 40,000 के, 40,000 के creditors, out of this 10,000 के creditors जो थे वो स्टॉक ले गए of ₹8,000 in full and final settlement. ये 10,000 creditors have been paid. इसकी एंट्री कोई नहीं आएगी, है ना? No entry will be passed because creditors have taken over the asset, and the remaining creditors, he says, allowed a discount of 10%. Remaining creditors were 30,000. They allowed a discount of 10% minus 10%, 27,000. 27,000 पे करने की एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 27,000 rupees. Next is Rohit had given a loan of ₹70,000 to the firm which was duly paid. Rohit's loan account debit to cash account ₹70,000. A machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at ₹3,000, whereas its expected value was ₹5,000. This is unrecorded asset taken over by partner. चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, यू नो, हम एंट्री सेम पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल है। पार्टनर इज कुणाल। एंट्री विल बी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड ₹3,000। एस्टिमेटेड प्राइस नहीं आएगा, जो टेकन ओवर प्राइस है या रियलाइजेबल वैल्यू है वो आएगी। ₹3,000 से एंट्री ये पास की जाएगी। यहाँ 5,000 जो दिए हुए हैं वो किसी काम के नहीं है, वो कंफ्यूज करने को दिए। Next is the firm had a debit balance of ₹15,000 in the profit and loss account on the date of resolution. Debit balance of profit loss account, it means it is accumulated losses. So entry बन जाएगी partners capital debit. Here Rohit's capital debit, Kunal's capital debit and Sarthak's capital debit to profit and loss account, और रेशियो इनकी मेंशन नहीं की हुई है, इक्वल रेशियो 5,000 each for Rohit, Kunal and Sarthak, और profit and loss account में 15,000 rupees. And last point is Sarthak paid the realization expenses of ₹16,000 out of his private funds, who was to get a remuneration of ₹15,000 for completing resolution process and was responsible to bear all the expenses. 16,000 rupees के expenses उसने पे किए। बेयर किसने करने थे? बेयर भी लिखा है सब में, उसी ने ही करने थे। तो 16,000 expenses paid by partner, borne by partner। क्या एंट्री होती है इसकी? Expenses paid by partner, no entry. पे करने थे, यस, उसने पे करना, उसने ही पे कर दीजिए, और हमने उसे कितना देना है? 15,000 रेमुनरेशन ही विल गेट। इसकी एंट्री बिजनेस करेगा। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल ₹15,000। आई होप सम नंबर 12 इज क्लियर। 12th में किसी को डाउट है पूछ लीजिए पहले। एफ पार्ट दोबारा बताना। सेकंड पॉइंट दोबारा। एफ पार्ट का एक बार दोबारा बता। 15,000 रुपीज हमने रेमुनरेशन को पे करी है, ये हमारा एक्सपेंस हो गया बिजनेस का। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000 के साथ, ये हमने पे किया। 16,000 जो एक्सपेंसेस उसने पे करने किए हैं सार्थक ने, वो उसने ही बेयर करने थे। बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एंट्री इसमें करनी ही नहीं है, बिकॉज एंट्री तब पास होती है अगर वहां बिजनेस इन्वॉल्व होता है, यहाँ बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। फाइन, तो एंट्री आपकी बनेगी सिर्फ
फॉर रेम्यूनरेशन की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल रुपीज 15,000। आई होप आई एम क्लियर। सर बी पार्ट। बी पार्ट में 40,000 क्रेडिटर्स थे, उसमें से वो कहता है 10,000 क्रेडिटर्स स्टॉक ले गए, जो बाकी बच गए उन्होंने डिस्काउंट दे दी। जो स्टॉक लेके गए हैं, whenever any outside liability takes over the asset, उसकी एंट्री नहीं होती। 10,000 वाले क्रेडिटर स्टॉक ले गए, अकाउंट खत्म हो गया, हमने कोई उनको पे नहीं किया, कोई रिसीव नहीं किया, इसकी एंट्री खत्म हो गई। ये सेल्स जो बाकी क्रेडिटर बचे थे, बाकी कितने बचे थे? 40 माइनस 10 30, उन्होंने डिस्काउंट दे दी 10%। ये 10% माइनस किया 30 का 27। हमने जो कैश पे किया है उसकी एंट्री करनी है, एंड इन दिस केस वी हैव पेड कैश बट रुपीज 27,000। 27 की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट ले गया, उसकी एंट्री नहीं होनी, आउटसाइड लायबिलिटी। अगर पार्टनर एसेट ले जाए उसकी एंट्री होती है। अगर क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, बैंकर्स वगैरह हो गए, बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटी जो है वो एसेट को ले जाए उसकी एंट्री नहीं होती। जो कैश पे किया जाता है या रिसीव किया जाता है उसकी एंट्री होती है। चलिए आगे। Fine. Then sum number 13. It says book value of assets other than cash and bank transfer to realization is rupees 1 lakh. Book value of assets other than cash and bank transfer to realization is rupees 1 lakh. 50% of the assets are taken over by a partner Atul at a discount of 20%. See, assets की value थी rupees 1 lakh. He says 50% means rupees 50,000 की assets have been taken over by partner at discount of 20%, minus 20%। डिस्काउंट है तो माइनस किया जाएगा इसका 50,000 का, मीन 10,000 रुपीज, तो 40,000 रुपीज। 40,000 की एसेट जो है वो पार्टनर ले गया, पार्टनर नेम इज अतुल, एंट्री बन जाएगी इसकी अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज। ये पॉइंट क्लियर? फाइन, आगे चले। He says 40% of remaining assets are sold at a profit of 30% on cost। 40% remaining assets, remaining कितनी बच गई हमारे पास? 50,000 की। 50 1 लाख की थी, 50 की पार्टनर ले गया, 50 की बाकी बच गई। ये ठीक है, ये ठीक है। 50,000 की He sells 40% of the remaining asset, इसका 40% means 20,000 rupees। 20,000 rupees are sold at a profit of 30%। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस इसका 30% रुपीज 6,000, 26,000 has been sold। एंट्री बन जानी है बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 26,000। and further he says 5% of the balance being obsolete, realized nothing, कुछ नहीं मिला उसका, उसकी एंट्री नहीं होनी, and remaining assets are handed over to a creditor in full settlement, remaining की भी एंट्री नहीं होनी। जो assets obsolete हो गई हैं उसका पैसा नहीं मिला, no entry is passed। जो उसके बाद बच गई have been taken over by creditor, and whenever any asset has been taken over by a creditor, उसकी एंट्री नहीं होती है, तो बाकी की एंट्री भी नहीं होती। मींस एक एंट्री ये होनी है 40 के साथ अतुल कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, एक एंट्री ये होनी है 26 के साथ बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, और द एंट्री कैन बी कंबाइंड आल्सो। अतुल कैपिटल डेबिट 40,000, बैंक डेबिट 26,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 66,000। डन। तो इसके बाद जितनी एसेट्स बच गई हैं सारी, या तो उसका पैसा नहीं मिला या वो कोई क्रेडिटर ले गए, तो उसकी दोनों केसेस में एंट्री नहीं होती। हाँ जी दिव्यांशी। सर फर्स्ट लाइन में एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं डालेंगे हम? बुक वैल्यू एसेट ट्रांसफर नहीं बेटा, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो डाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, डाल भी सकते हैं, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में ना मैंने पहले भी बताया, जब ऐसे एंट्रीज हो ना, हमें ये अज्यूम करना है कि एंट्रीज जो है वो एसेट लायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके हैं। स्पेशली उन केसेस में जब पॉइंट्स में दिया हो, जैसे सम नंबर 12 था, सम नंबर 11 था, ये क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया हो, यहाँ ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि पैराग्राफ में दी हुई है। अगर पॉइंट्स में होता है ना, लाइक सम नंबर 12, सम नंबर 11,
वहां पे एंट्रीज को एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कर दोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। मेन जो पॉइंट है यहाँ पे कैलकुलेशन का था, कितने की एसेट्स पार्टनर ने ली, कितने की एसेट्स हमने सेल करी है, और जो बाकी बच गई एसेट्स वो या तो वो ऑब्सोल्यूट हो गई, नथिंग रियलाइज, या फिर वो क्रेडिटर्स ले गए, उसकी भी एंट्री हमने करनी है। तो इसकी अगर कंबाइन एंट्री करें, अदर्स कैपिटल डेबिट, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए आगे, सम नंबर 14। Lal and Pal were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:7. On 1st April 15, their firm was dissolved. After transferring assets and outside liabilities to utilization account, you are given the following information. Number one is creditor of rupees 360 accepted machinery at 5 lakh and paid to the firm 140. Cash account debit to realization account rupees 140. Next is second creditor of 50,000 accepted stock 45 in full settlement of his claim, no entry. Stock taken over by creditor. Third creditor amounted to 90,000 accepted 45 in cash and investment but 43 in full settlement. So realization account debit to cash account 45,000. जितना कैश पे किया है. And last चीज says loss on dissolution was 15,000. तो एंट्री बन जाएगी large capital debit, large capital debit to realization account rupees 15,000 को 3:7 में करेंगे तो 4,500 and 10,500. डन. चलिए आगे 15 करूं स्टार्ट. ओके. It says pass the journal entries for the following transactions on the dissolution of a firm P and Q after assets and liabilities have been transferred to realization. Number one is stock rupees 2 lakh. P took over 50% of stock at discount of 10% and remaining stock was sold at a profit of 25% of cost. Same point जो भी हमने किया है. Same point. Entry इसकी बन जानी है. Entry मिलाइए पहले. P is capital debit, cash account debit to realization account. P capital debit, cash account debit to realization. P में कितना आएगा? P में आएगा 2 लाख का 50%. 50% means 1 lakh. That discount is 10%. 10%. 90,000 वैल्यू आ जाएगी P में. P capital debit. And remaining he says remaining stock was sold at 25% profit. Remaining stock का आपका फिर 1 लाख बच गया. It has been sold at 25% profit plus 25% means 25,000. So 1,25,000. Cash debit 1,25,000. P debit 90,000. Cash debit 125,000. To realization 2,15,000. Done. Next is debtors of rupees 2,25,000. Provision is 25,000 and 20,000 of book debts were proved bad. प्रोविजन को छोड़ देना यार. प्रोविजन किसी काम की नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि प्रोविजन वो है जो प्रोवाइड किए गए हैं पैसे, बैड डेट्स हुए नहीं है अभी. ठीक है, इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं करना है, प्रोविजन को छोड़ देना. ठीक. और जब हम लायबिलिटीज ट्रांसफर की एंट्रीज करते होते थे, प्रोविजन जो है याद है हमने एंट्री नंबर 2 की थी, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, याद है ना? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी ट्रांसफर किया जाएगा. डेटर्स रियलाइज कितने से हुए हैं ये कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन किसी काम नहीं आती. तो डेटर्स हमारे पास थे 225,000 के, और उसमें से 20,000 के वो कहता है कि दे प्रूव्ड बैड. इट मींस वी हैव गॉट रुपीस 2,05,000. तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000. नेक्स्ट है लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000 सोल्ड फॉर 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर वो चार्ज 2% कमीशन. सेम पॉइंट आया था आपका सम नंबर 1 में, सेम पॉइंट था. 15 लाख की एसेट सेल करी है और 2% कमीशन चार्ज करी है. 15 लाख की एसेट सेल प्राइस माइनस 2% कितना बन गया? 15 लाख का 2% 30,000. 30,000. 14,70,000 से एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीस 14,70,000. Then further he says machinery book value was handed over to a creditor at discount of 10%, no entry. Machinery has been handed over, asset taken over. Then his investment 60,000 realized at 125%. ये same point पहले आया हुआ था. Investment 10,000 realized 150%. ये same है. 60,000 वाली asset has been realized at 125%.
एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹75,000, 60,000 का 125% 75,000। चलिए आगे। नेक्स्ट इज गुडविल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। गुडविल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, इसने यहाँ बताया है कि हुआ कि वो रियलाइज हुए हैं कि नहीं हुए। कोई भी एसेट हो जब तक सब में बताया ना गया हो वो रियलाइज होगी है, तो वो नहीं हुई है। यहाँ उसने ये तो नहीं कहा गुडविल के इतने पैसे मिले या प्रीपेड एक्सपेंसेस के वापस आ गए पैसे, उसने ये नहीं कहा। इट मींस गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हैव रियलाइज्ड नथिंग। ठीक है, एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू दी होती है, अगर ना दी गई हो एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू तो इट मींस कि द रियलाइजेबल वैल्यू इज जीरो। इट मींस फर्दर मींस दैट एसेट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड, कुछ नहीं मिला है उसका, इसका मतलब ये है। Done. So no entry will be passed because nothing has been realized. चलिए आगे। Next is there was an old furniture in the books written off and this was sold for 10,000. Unrecorded asset sold, realized, cash account debit to realization ₹10,000. Then that an old customer whose account was written off as bad in the previous year paid 60%. Again unrecorded asset realized, cash account debit to realization account 20,000 का 60% 12,000. Point number I, P undertook to pay Mrs. P's loan, liability taken over by partner. Realization account debit to P's capital ₹50,000. And same sum का last point है, he says trade creditors ₹160,000. Half of the trade creditors accepted plant machinery at an agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claim after allowing a discount of 16,000. Remaining creditors were paid 90% in full settlement. सिंपल सी एंट्री है ये, एंट्री बननी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना हमने कैश पे किया है। यहाँ पे एंट्री में जो ज्यादा मार्क्स है वो कैलकुलेशन के हैं कि कितनी अमाउंट हमने पे करनी थी और कितनी उसको पे करी। ये सेल्स एक्सपेंसिव क्रेडिटर्स वर ₹1,60,000। Trade creditors were ₹1,60,000 and half of the creditors, half होगा इसके 80,000 की, इधर बाकी बच गए 80,000 के। Half of the creditors accepted plant and machinery at an agreed valuation 54 and cash। 80,000 creditors जो थे वो प्लांट मशीनरी ले गए हमारी 54,000 की, जो 26,000 बच गया वो कैश ले गए, जो लिखा है ना, एंड कैश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। कैश कितना लेके गए हैं वो 26,000 एंड रिमेनिंग आफ्टर लोइंग द डिस्काउंट 16,000, डिस्काउंट माइनस कर दी है, माइनस डिस्काउंट 16,000, तो ये आपकी बन गई 10,000। उन्होंने 10 रिसीव की है। 80,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 54 की वो प्लांट मशीनरी ले गए और 16,000 की उन्होंने डिस्काउंट दे दी। इट मींस रिमेनिंग अमाउंट हैज बीन पेड इन कैश, द रिमेनिंग अमाउंट इज 10,000। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? कैश पेड इज 10,000, 54 की एसेट ले गए, 16,000 की डिस्काउंट दे दी, ये बन के सारा मिला के 70,000। 80 के क्रेडिटर्स से 10 हमने उनको पे कर दिया एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स ही सेड वर पेड 90%। 80,000 का 90% 72,000, 72 हमने एक इनको पे किया। इट मींस हमने टोटल जो पे किया है प्लस करके 82,000 रुपीज हैव बीन पेड। एंट्री बन जानी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 82,000। डन। सम नंबर 16, it says there was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured 18,500 and a chapter of one bill of 2,500 became insolvent and 50 paisa in a rupee was recovered. The liability of the firm on account of bill discounted dishonored has not been recorded. Unrecorded liability, हम कल भी ये बात यही कर रहे थे कि जब कोई डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाए तो उस केस में जितना पैसा मिलता है उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दो, बाकी सारे बिल्स हमें पे करने पड़ेंगे, तो उसने नहीं पे किए। यहाँ पर 2 एंट्रीज बननी है, एक बननी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹18,500, जितने के बिल्स डिस्काउंटेड थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,500, और एक बननी है बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1250।
2500 का 50 पैसा इन रुपी, 2500 इंटू 50%, 1250, ये एंट्री बन जाएगी कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है there was a contingent liability in respect of claim for damages 75,000. Such liability was settled for rupees 50,000 and paid by partner A. So realization account debit to A's capital rupees 50,000. Liability taken over by partner. Realization account debit to A's capital. Next point number C. Firm will have to pay rupees 10,000 as compensation to injured employee, which was a contingent liability not accepted by the firm. Unrecorded liability taken over by paid by firm. So realization account debit to cash rupees 10,000. And last point इसमें है rupees 5,000 for damages claimed by a customer has been disputed by the firm. It was settled at 70% by a compromise between the customer and the firm. हमारे पे क्लेम था 50,000 का, हमने उसका 70% पे कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 का 70% पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 सॉरी 100, 5,000 का 70% 3,500 has been paid by the firm. Next is 17th. First is Dharam, a partner, was appointed to look after the process of resolution at a remuneration of 12,000 and he had to pay expenses. Expenses were paid by Dharam. So realization account debit to Dharam's capital 12,000 जो हम पे कर रहे हैं, जो 11,000 है expenses उसने bear करने थे, उसने ही पे कर दिए. Business is not involved, no entry. हम सिर्फ 12,000 की एंट्री पास करेंगे. नेक्स्ट इज जय, अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन एंड वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 15,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल 15,000. जय एग्रीड टू बेयर एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस रुपीज 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑफ द बिहाफ ऑफ जय. 15,000 हमने पे कर दिया जय को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल. 16,000 जय ने पे करना था, विजय ने पे कर दिया. जय बन गया डेटर, विजय बन गया क्रेडिटर. एंट्री बन जाएगी जय अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. इसकी दो एंट्रीज होनी है, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट रुपीज 10,000, बिकॉज पे करने थे जय ने, पे किए विजय ने. जय बन गया डेटर विजय का और विजय बन गया क्रेडिटर जय का. जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट रुपीज 16,000 और जो हमने उसको जय को 15,000 रेमुनरेशन पे करी है, हम उसकी एंट्री पास करेंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल 15,000. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी इज दीपा, अ पार्टनर हु वाज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 7,000. एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा's कैपिटल रुपीज 7,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा's कैपिटल 7,000. दीपा एग्रीड टू बेयर एक्सपेंसेस. Actual expenses were paid from firm's bank account. Expenses to be borne by partner paid by firm. Deepa's capital account debit to bank account. दो एंट्रीज बननी है. पहली बननी है रियलाइजेशन डेबिट टू दीपा 7,000, फिर बननी है दीपा टू बैंक रुपीज 6,000. नेक्स्ट इज देव, अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ रेजोल्यूशन फॉर 7,500. He took away stock of the same amount as his commission. The stock has already been transferred to realization account. No need to pass any entry. Asset has been taken over by the partner for claim settlement, commission settlement. No need to pass any entry. Then is point number E. Jeev, a partner, agreed to do the resolution process for which he was allowed a commission of 10,000. Commission paid की entry realization account debit to Jeev's capital rupees 10,000. He agreed to bear the expenses. Actual expenses were paid by Jeev rupees 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. It means firm paid the expenses on behalf of Jeev. Same entry जो दीपा वाली एंट्री हमने करी है, Jeev's capital account debit to cash account 12,000. यहाँ भी दो एंट्रीज पास हो रही हैं. एक है रियलाइजेशन डेबिट टू Jeev 10,000 और दूसरी है Jeev डेबिट टू कैश रुपीज 12,000. And last entry is a debtor of rupees 8,000 already transferred to realization account agreed to pay the expenses 7,800 in full settlement. Again, no need to pass any entry. The debtors have agreed to pay expenses and the account has been settled. No need to pass any entry. इसके डाउट्स हैं तो पूछिए.